اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین و ناظرین، یہ کتاب ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بہ لفظ جو مثنوی میں لکھی ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی بشری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی بھول یا غلطی ہو گئی ہو تو ہم حضرت محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں معافی کی طلبگار ہیں۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کی آج بھی مختلف زبانوں میں تشریح ہو رہی ہے، اور انسان آج تک حضرت کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ان حقائقوں کو بہت کم لوگ سمجھ پائے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ باتیں سمجھ نہ آ رہی ہوں تو مثنوی کی شرح کا بھی مطالعہ کریں، اور بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، مگر بندے کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ایمان سے روشن فرمائے اور ہمیں ثابت قدم رکھے، آمین۔ جلد اول، حکایت نمبر 31، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ انجیل میں تھی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام انجیل میں تھا، جو پیغمبروں کے سردار اور صفا کے سمندر ہیں۔ ان کے حلیہ اور شکل کا ذکر تھا، ان کے جہاد اور روزے اور کھانے کا ذکر تھا۔ عیسائیوں کی ایک جماعت ثواب کے لیے جب ان کے نام اور ذکر پر پہنچتے اس متبرک نام کو بوسہ دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے۔ وہ لوگ اس سارے جھگڑے میں خوف و خطر سے دور تھے، وہ سرداروں کے شر سے محفوظ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی پناہ میں تھے۔ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ان کا ساتھی تھا۔ وہ جو فتنوں میں پھنسے رہے، ذلیل و خوار ہوئے، ان کا مذہب و قانون تہو بالا ہو گیا۔ جب نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا یار ہو جاتا ہے تو ایک مضبوط قلعہ بن جاتا ہے۔ جلد اول، حکایت نمبر 32، ایک دوسرے یہودی بادشاہ کی حکایت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی تباہی کی کوشش کرتا تھا۔ پہلی ناقابل علاج خون ریزی کے بعد ایک اور یہودی بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تباہی کی کوشش کرتا تھا۔ اس کا اشارہ قرآن میں سورۃ البروج میں لکھا ہے۔ یہ بادشاہ بھی پہلے والے راستے پر عمل پیرا ہوا، جس کسی نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تا قیامت اس پر اس طریقہ کی لعنت کی جاتی ہے۔ نیک طریقہ ایجاد کرنے والوں کو قیامت تک اس پر عمل پیرا ہونے والوں کی نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ میٹھا اور کھاری پانی لوگوں کی رگ رگ میں ہے اور سور پھونکنے تک موجود رہے گا۔ اگر تو غور کرے تو طالب علموں کی نیاز مندی پیغمبری جوہر کے شعلے ہیں۔ شعلے ہمیشہ جواہر کے ساتھ حرکت کرتے ہیں اور انوار اس جانب جاتے ہیں جہاں وہ ہوتے ہیں۔ روشن دان کی روشنی سورج کے سفر کی وجہ سے گھر کے چاروں طرف دوڑتی ہے۔ جس کو کسی ستارے کے ساتھ وابستگی ہے اس کی اپنے ستارے کے ساتھ دوڑ ہے۔ زہرہ کی طرف میلان عیش کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر مریخ جیسی خون ریز عادت والا ہے تو لڑائی جھگڑے اور بہتان وغیرہ کی جستجو کرے گا۔ ان ستاروں کے پیچھے اور ستارے ہیں، ان میں جلانے کا میلان اور نحوست نہیں ہے۔ وہ ان 7 آسمانوں میں نہیں ہے، وہ خدا کے انوار کی گرمی میں ثابت قدم ہے۔ وہ نہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور نہ الگ۔ یہ انسانوں کو سر جھکا کر چلنے والا بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کا نور غالب آنے والا اور اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ اپنے نور کو روحوں پر نچھاور کرتا ہے جن کے نصیبے اچھے ہیں، اور جس نے اس نور کا نچھاور پا لیا اس نے منہ خدا کے غیر سے موڑ لیا۔ جس کے پاس عشق کا دامن نہ تھا اس کو اس نور میں سے کوئی حصہ نہ ملا۔
इज्जा के रुख हमेशा कुल की तरफ होते हैं। बुलबुलों को फूल के मुखड़े का इश्क है। नेक लोगों के रंग सफा के मटके से होते हैं और बुरों के मैल कुचैल के स्याह पानी से। उस पाक रंग का नाम सिबगतुल्लाह है और लानतुल्लाह है उस गंदे पानी की बदबू। जिस तरह समंदर का पानी वापस समंदर में ही जाता है, इसी तरह हमारे जिस्म से इश्क में डूबी हुई जान भी अपनी असल की तरफ ही लौट जाती है। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 33। बादशाह का आग जलाना, आग के पास बुत रखना कि जो बुत को सजदा करेगा वो आग से निजात पाएगा। देखो उस यहूदी कुत्ते ने क्या तदबीर की। आग के पास एक बुत खड़ा कर दिया कि जो इस बुत को सजदा करेगा छूट जाएगा और अगर नहीं करेगा तो भस्म हो जाएगा। ये इसलिए था कि उसने अपने नफ्स के बुत को सजा नहीं दी थी, इसलिए उसके नफ्स के बुत से एक नया बुत पैदा हो गया। तुम्हारा नफ्स तमाम बुतों की माँ है क्योंकि वो बुत सांप है, लेकिन ये नफ्स अजदहा है। नफ्स लोहा और पत्थर है, ये बुत चिंगारी है। चिंगारी तो पानी डालने से बुझ जाती है, लेकिन लोहे और पत्थर के अंदर छुपी हुई आग पानी से कहाँ ठंडी होती है। ये दोनों जब भी टकराएंगे चिंगारी पैदा होगी। इसी तरह नफ्स के पैदा करदा बुत फना किए जा सकते हैं, लेकिन नफ्स की वो कुव्वत जो बुत पैदा करती है उसका अजाला बहुत मुश्किल है। इसलिए अपने नफ्स से हमेशा होशियार रहना चाहिए। बाहर वाला बुत काला पानी है, लेकिन नफ्स वाला बुत तो काले पानी का चश्मा है। पत्थर का एक टुकड़ा कई घड़े तोड़ सकता है, लेकिन वही पत्थर का टुकड़ा चश्मे का मुंह बंद नहीं कर सकता। बुत तोड़ना आसान है, लेकिन नफ्स के मामले को आसान समझना नादानी है। इस नफ्स के हर सांस के साथ एक मकर है और हर मकर में 100 फरौन गर्क है। मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा और मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भाग। फिरौनियत से ईमान का बेड़ा गर्क न कर। अहद और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक पैदा कर। ऐ भाई, अपने जिस्म के अबू जहल से छुटकारा हासिल कर। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 34। यहूदी बादशाह का एक औरत को माँ बच्चा खिलाना और उसका बच्चे को आग में डालना और आग में से बच्चे का बोलना। वो यहूदी एक औरत को माँ बच्चे के लाया, बुत के सामने आग जल रही थी। वो बोला, ऐ औरत, इस बुत को सजदा कर वरना आग में जला दी जाएगी। वो औरत पाक दीन वाली और मोमिना थी। उस यकीन वाली ने बुत को सजदा ना किया। उस बादशाह ने उसके बच्चे को छीना और आग में डाल दिया। औरत डरी और दिल को ईमान से हटाया। उसने चाहा कि बुत को सजदा कर दे। बच्चा चीखा कि मैं मरा नहीं हूँ, अब माँ अंदर आ जा, मैं इस जगह अच्छा हूँ। अगरचे बज़ाहिर आग में हूँ, आग नजरबंदी का एक पर्दा है, वरना ये एक रहमत है। इसी तरह दुनिया की सब अशिया भी रहमत के आगे पर्दा है। उसने कहा, माँ अंदर आ जा और सच्चाई की दलील देख, ताकि अल्लाह के महबूब बंदों के ऐश को देख। अंदर आ और आग की सूरत में पानी देख। अंदर आ और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का राज देख, जिसने आग में गुलाब और चंबेली के फूल पाए। तुझसे पैदा होते वक्त भी मुझे मौत नजर आ रही थी और तुझसे निकल पड़ने का बहुत डर था। जब मैं पैदा हुआ तंग कैद खाने से छूटा, अच्छे मुकाम और खुली दुनिया में आ गया। अब मैं इस दुनिया को रहम की जगह समझता हूँ, क्योंकि आग में मैंने बहुत सुकून देखा है। अब एक दुनिया है बज़ाहिर मादूम, दरअसल मौजूद, और उस दुनिया की मौजूद शक्ल नापायदार है। तूने उस कुत्ते की ताकत देख ली, अंदर आ और अल्लाह की रहमत और मेहरबानी देख। मैं मोहब्बत की वजह से तुम्हें पुकार रहा हूँ, वरना मुझे तेरी परवाह नहीं है। अंदर आ और दूसरों को भी बुला ले कि वो भी आग में बादशाह का दस्तरखान बिछा देख लें। ऐ लोगो, सब अंदर आ जाओ कि दीन के मीठे पानी के अलावा सब अजाब है। इस गहरे समंदर के अंदर छलांग लगा दो ताकि रूह साफ और लतीफ बन जाए। माँ अंदर आ गई और उसने भी यही कहना शुरू कर दिया और अल्लाह की मेहरबानियों के मोती परोना शुरू कर दिए। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 35। ज़ौक़ की वजह से लोगों का अपने आप को आग में डालना। उस औरत और बच्चे का हाल देखकर लोग बेखुद होकर अपने आप को आग में डाल रहे थे। वो सब बगैर किसी के बुलाए दोस्त के इश्क की वजह से खींचे चले आ रहे थे, इसलिए कि हर तुर्श को शीरीं कर देना उसकी जानिब से है।
यहाँ तक कि सिपाही लोगों को मना करते थे कि आग में ना आओ, और यहूदी शर्मिंदा हुआ जा रहा था। लोग आग की वजह से अपने जिस्मों को फना करने के लिए और ज्यादा आशिक हो गए। वो दिल का बीमार पशेमान हो गया। शैतान ने अपने आप को भी मुंह काला देखा। वो स्याही जो दूसरों के मुंह पर मलना चाहता था, उसके अपने मुंह पर इकट्ठी हो गई। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 36। उस शख्स का मुंह टेढ़ा रह जाना जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का तमस्खुर उड़ा दिया। जिसने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तमस्खुर से मुंह टेढ़ा करके लिया तो उसका अपना मुंह टेढ़ा हो गया। वो वापस आया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माफ कर दीजिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहरबानियां और इल्म लुद्नी हासिल है। मैंने जहालत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमस्खुर उड़ाया। हालांकि तमस्खुर का मुस्तहिक तो मैं था। जब खुदा चाहता है कि किसी की पर्दादरी करे तो उसका मिलान पाक लोगों पर तानाजनी की तरफ कर देता है। अगर खुदा चाहता है कि किसी की ऐब पोशी करे तो ऐबदारों के ऐब भी नहीं बयान करता। जब खुदा हमारी मदद करना चाहता है तो हमें इनकसारी की तरफ माइल कर देता है। बड़ी मुबारक है वो आंख जो उसके लिए रोती है, और वो दिल बहुत मुबारक है जो उसके लिए जल बुन रहा है। हर रोने के बाद आखिर खंसी है, और अंजाम पर नजर रखने वाला मुबारक इंसान होता है। जहाँ कहीं आबे रवा हो सब्जा होता है, जहाँ कहीं अश्के रवा हो रहमत होती है। राहट की तरह गिरियां रह ताकि तेरी रूह के सहन में सब्जा उगे। सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को माफ फरमा दिया जब उसने शर्मिंदा होकर तौबा कर ली। तू रहम चाहता है तो आंसू बहाने वालों पर रहम कर। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 37। यहूदी बादशाह का आग पर गुस्सा करना कि क्यों नहीं जलाती, और उसका जवाब। बादशाह आग की तरफ मतवज्जो हुआ कि ऐ बदमिजाज, तेरी दुनिया को जलाने वाली फितरत को क्या हुआ? तू जलाती क्यों नहीं? तू तो अपने पूजने वाले को भी नहीं बख्शती। तुझे ना पूजने वाले कैसे बच गए? क्या किसी ने तुझ पर जादू कर दिया है, या तेरी फितरत के खिलाफ तेरा काम हमारी बदनसीबी की वजह से है? आग ने कहा, मैं वही आग हूँ, मेरी गर्मी देखनी है तो अंदर आ जा। मेरी तबीयत और असल नहीं बदली, मैं खुदा की तलवार हूँ, इजाजत ही से काटती। जिस तरह ज़ाहिरी आग खुदा के हुक्म की पाबंद है, इसी तरह बातनी आग भी खुदा के हुक्म की पाबंद है। जब वो चाहता है तो मिजाज में सोजिश पैदा करता है, और जब चाहता है तो ऐन गम खुशी बन जाता है। हवा, मट्टी, पानी और आग गुलाम है। मेरे और तेरे एतबार से मुर्दा है, लेकिन अल्लाह के नजदीक जिंदा है और उसके हुक्म के पाबंद हैं। आशिक की तरह बेजान और मुसलसल तू लोहे पर पत्थर मारेगा तो आग निकलेगी, वो भी इसी के हुक्म से बाहर निकलती है। जुल्म के लोहे और पत्थर को बाहम न टकरा, क्योंकि ये भी मर्द औरत की तरह बच्चे देते हैं। ये सब असबाब हैं, तो जरा ऊंचा देख के असबाब को भी किसी सबब ने पैदा किया। इन असबाब को वो सबब अमल करने वाला बनाता है और जब चाहे मुअत्तल भी कर देता है। वो असबाब जो अंबिया अलैहिस्सलाम के रहनुमा हैं, इन असबाब से बालातर है। इन असबाब से हमारी अक्ल वाकिफ है, और उन असबाब को अंबिया अलैहिस्सलाम जानते हैं। आग और हवा अल्लाह के हुक्म से वजूद में आते हैं, उसकी शराब से दोनों मस्त हैं। ऐ बेटा, बुर्दबारी का पानी और गुस्सा की आग भी तू अल्लाह की जानब से देखेगा। हवा की जान अगर अल्लाह से वाकिफ ना होती तो कौम आद के नेक व बद में कैसे फर्क करती। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 38। हवा का हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक करने का किस्सा। मोमिनों के चारों तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने एक खत खींच दिया। जब हवा उस जगह पहुंचती नर्म पड़ जाती। जो इस खत के बाहर था, हवा अंदर से उसके टुकड़े टुकड़े कर रही थी। इसी तरह हजरत शेबान राई रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने रेवड़ के चारों तरफ एक नुमाया खत खींच देते। जब वो जुमा की नमाज के लिए जाते ताकि भेड़िया गारत गरी ना करे, उसके अंदर कोई भेड़िया ना घुसता और ना कोई बकरी बाहर आती। भेड़िए की और बकरी की हिर्स की हवा उस मर्द खुदा के दायरे में बंद थी।
इसी तरह औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम पर मौत की हवा बाग की नसीम की तरह खुशगवार होती है। आग ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ नहीं पहुंचाई। दीनदारों को शहवत की आग नहीं जलाती और सरकशों को जमीन की तह में ले जाती है। दरिया की मौज चूंकि खुदा के हुक्म से उठी, मूसा अलैहिस्सलाम वालों को किबतियों से अलग पहचान लिया। कारून की जमीन को जब हुक्म खुदा पहुंचा, उसकी दौलत और तख्त को गहराई में खींच लिया। मट्टी और पानी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फूंक को चखा, बाल और पर खुले और परिंदा बन गया। जब तेरे मुंह से अल्लाह की तारीफ निकलती है तो सुबह का रब उसको जन्नत का परिंदा बना देता है। तेरा सुभान अल्लाह कहना जो पानी और मट्टी की तरह है, दिल की सच्चाई की फूंक से जन्नत का परिंदा बना। कोहे तूर मूसा अलैहिस्सलाम के नूर की वजह से रक्स करने लगा, बाकमाल सूफी बन गया और नक्स से पाक हो गया। ऐ अजीज, अगर पहाड़ सूफी बन गया तो क्या ताज्जुब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म भी तो मट्टी का ही था। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 39। यहूदी बादशाह का नसीहत करने वालों की नसीहत पर तंज और इनकार। जब यहूदी बादशाह ने ये अजायब देखे, सवाए तंज और इनकार के उससे कुछ न हुआ। नसीहत करने वालों ने कहा, हद से न गुजर, कत्ल करना छोड़ दे, ये बुरा काम है। अपनी जान को ज्यादा आग न लगा। उसने उनके हाथ पांव बदवा दिए और कैद में डाल दिया। अपने जुल्म के पैबंद पर एक और पैबंद लगा दिया। जब हालत यहाँ तक पहुंची, आवाज आई, ऐ कुत्ते ठहर, हमारा कहर आ पहुंचा। आग उबरी और यहूदियों को घेर कर जला डाला। उनकी असल आग ही थी, वो अपनी असल की तरफ चले गए। बच्चे की माँ अपने बच्चे की जोया है, शाखें जड़ों से वाबस्ता है। हौज का पानी थोड़ा थोड़ा करके हवा के जरिए अपनी असल की तरफ लौट जाता है। इसी तरह हवा सांस के जरिए हमारी जानों को दुनिया के कैद खानों से थोड़ा थोड़ा चुराती रहती है। हमारे पाक कलमात अल्लाह की तरफ चढ़ते हैं। हमारी परहेजगारी की वजह से हमारे सांस चढ़ते हैं हमारी तरफ से बतौर तोहफा। जुल जलाल की रहमत से उन कलमात का बदला दुगना हो जाता है। फिर वो हमें मजबूर कर देता है कि हम वही कुछ हासिल करें जो पहले हासिल हो चुका है। हम फारसी में इसे कशिश कहते हैं। ये उस तरफ से आती है जिस तरफ से ये ज़ौक़ आता है। हर रूह की नजर उस तरफ रहती है कि जिस तरफ से एक दिन कोई मजा हासिल किया था। हर जिन्स को अपनी जिन्स से ज़ौक़ होता है, या कोई चीज एक दूसरी जिन्स को कबूल कर लेती है। रोटी और पानी हमारी जिन्स का न था, लेकिन हमारी जिन्स बन गया। हमने इजाफा किया, अपने अंजाम के लिहाज से वो हमारे हम जिन्स बन गए। लेकिन अगर किसी गैर जिन्स से हमारा ज़ौक़ होगा तो आरजी होगा। परिंदा शिकारी की सीटी का लुत्फ लेता है, लेकिन जब वहां अपनी जिन्स को नहीं पाता तो भागता है। प्यासे को रेत का शराब ज़ौक़ देता है, लेकिन उसमें पहुंचता है तो फिर पानी की तलाश में भागता है। खबरदार, कोई मुलम्मा साज तुझे रास्ता से ना भटकाए। आओ इस किस्सा की हकीकत को किस्सा कलीला और दिमना में तलाश करें।